Hello everyone, this is Dr. Gobind Rai Garg, and I'm very happy to introduce you Dr. Abhimanyu, who has just got his FMG exam passed. Hi Abhimanyu. Good afternoon, sir. It's my honor to have a talk with you. It's my pleasure, Shubham. Abhimanyu, can you please introduce yourself? Yes, sir. Myself, Dr. Abhimanyu Rathore. I am from Rajasthan, Udaipur, and I have pursued my MBBS from Nepal, and currently I am doing internship from Nepal only. Okay. And which college in Nepal? Tribhuvan University, National Medical College, Birganj. Okay, you are from Veerganj. Okay, good. Yes, sir. What is your score this time? So 169, and this was my first attempt. Okay, this was first attempt. So, can you first guide us viewers about your preparation? So, when you actually started doing the preparation, and how did you do the preparation? So actually, I was passed out on 15th November 2022. And on 1 December, we have joined the internship because it is valid in India and all across the globe, and it is mandatory also. So we are doing our internship, and if we are getting some little time, then we are going to some important topics of the ward only, the cases present in ward, like CKD or OP poisoning, or if I'm posted in psychiatry, then there is schizophrenia, alcohol dependence. Not as such for proper FMG, I didn't started any preparation. But in May, when the cerebellum came with the program of Mission 200, at that time I thought that I have to take a decision whether I have to take a drop for 2 months for the FMG, or should I continue with the internship. But I thought it will be better for me to take a drop for 2 months from the internship and fully focused on this exam. So I take a drop, and my few friends also take the drop for the 2 months, and we enroll to the program of FMG Mission 200 of the Cerebellum Academy. And only thing is that, sir, we have to keep it very simple. Like 2 months is very doable. In the first class only, I have asked Praveen sir that, now I am going to prepare. Will it be achievable or not? Sir, it is very doable. 2 months is more than enough. It might vary according to person, but for me, I think 2 months is enough, more than enough. I got enough time to revise also. So it is enough. To score 150, it is enough. If I have a higher, then it's different thing, but to 150, it is enough. 2 months is more than enough. And it is very simple that, see, I have seen my friends also, like, we don't have to change the source. We can stick to one source, and we have to trust that source completely. Changing source will not work. Like, I have enrolled to the program, contact the team. You live class hota hai, 5 to 11. Do the live class. Then in the morning, you get unlimited PDF. Before that PDF, you can revise. Active recall you can do. What have sir and ma'am, whatever has been taught, you can do active recall. And when unlimited PDF comes, you can revise once. And in the matter of fact, if PYQ is considered, I have done only 2022, 21, and 2020. 3 years PYQ, not more than that. And what has been taught in the class, that much. uh, and in the sir, this time the in exam, I would say that मेरा जो clinical aspect जो है, मतलब clinical subjects, वो यहाँ पर काफी strong रहता है. मतलब मेरे कॉलेज का, मतलब personally, मतलब थर्ड ईयर से ही हम लोगों को काफी ज्यादा clinical exposure होता है. तो मेरे लिए वो क्लिनिकल सब्जेक्ट तो इजी थे ही. मेरे को सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करना था, बेसिक सब्जेक्ट्स. तो मेरा मेन फोकस उन सब्जेक्ट्स पर था. उसमें भी जैसे फार्मा है, जिससे हर कोई डर जाता है, तो मैंने आपके लाइव लेक्चर्स लिए थे. और उन लाइव लेक्चर्स को मैंने, क्योंकि मेरा रिवाइज करने का तरीका थोड़ा सा सर थोड़ा डिफरेंट रहता है. व्हाट आई यूज टू डू, मैं जब पढ़ता हूँ फिर खुद से ना, मेरे को ऐसा रहता है कि बार बार पढ़ने से ना मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगता है. तो आई डू ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ माई ओन वॉइस. तो वेन एवर आई फील लाइक आई एम नॉट एबल टू स्टडी, और मेरा मूड नहीं कर रहा है, या फिर मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल ही, या फिर तबीयत खराब हो गया है, तो बूफर पर उस ऑडियो को चलाओ और उस ऑडियो को सुनो. अपनी ही निमोनिक्स आपको रिकॉल होने लगता है. तो वो बेटर तरीका है फार्मा, पैथो एंड पीएसएम पढ़ने के लिए, मेरे हिसाब से. मतलब इट वर्क्स फॉर मी, इट माइट सम वर्क फॉर अदर्स आल्सो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स बेटर. बार बार मतलब बार बार एक ही चीज को पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ. एंड मेरे को एक कंसल्टेंट ने भी बोला था, बिकॉज आई एम फ्रॉम उदयपुर ना सर. तो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में डॉक्टर्स का वो होता है ना मीटिंग, तो मैंने ज्वाइन किया, तो वहां पर बोला था कि बेटर तरीका ऑडियो रिकॉर्ड करके पढ़ने का. तो मेरा वो रहता है, और थोड़ा ऑडियो में करता हूँ, मतलब अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उनको ही मैं बार बार सुनता हूँ. 1.5 to x पर, तो फटाफट हो जाता है.
दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, आई टुडे गॉट अ टोटली न्यू आइडिया, मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं है। आई यूजली यूज टू से टू द स्टूडेंट्स के व्हेन यू स्पीक समथिंग यू आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर दैट थिंग, ठीक है। बट अगर एक्चुअली आप सर क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि बोल बोल के बहुत ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे फ्रेंड्स है, वो लोग बोलते हैं अरे इतना टाइम लगेगा, इतने में तो हम मन में पढ़ लेंगे। बट सर पता है, फिर इफ यू आर लाइक, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, or if you're going somewhere out, like I am not doing, I have not done this this time only. From first year, from my 10th class, I have this habit. Now, from first year, I have applied it more often. Like I am going somewhere for some work, and the exam is there. Like I am traveling in train. In last 2 days, I have put the earphone. I started the audio and listening to my own audio, which is best. क्या हुआ, ध्यान नहीं, अपना ऑडियो अपना सुन रहे बस, और वो रिवाइज भी हो रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप जा रहा है। आपको मतलब एक्टिवली आपको हर टाइम मतलब ब्रेन को यूज नहीं करना है, पैसिवली भी आपके दिमाग में वो रिकॉल होता जा रहा है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो हर जगह तो आप हर चीज नहीं कैरी कर सकते, हर जगह स्पेस भी नहीं मिलता है। ईयरफोन लगाया, अपना सुना, हो गया। फार्मा मैंने ऐसे ही रिवाइज किया ट्रेन में। लास्ट में जो मैं ट्रेन में, मेरा एक्चुअली पटना था सेंटर, तो मैंने ट्रेन में फार्मा एंड पीडीएफ दोनों रिवाइज किया। लास्ट डे मैंने पीएसएम पढ़ा अच्छे से, और फिर एग्जाम दिया। दैट्स ग्रेट। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, स्टूडेंट्स यू कैन यूटिलाइज दिस आइडिया। मतलब मैं कहता ही हूँ शुरू से कि व्हेन यू स्पीक समथिंग यू आर लाइकली टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड। एंड प्लस अगर अपनी ही जो आवाज़ है वो बार बार सुनोगे तो डेफिनेटली वो जल्दी रिवाइज होगा और ब्रेन को ट्यूनिंग भी जल्दी हो जाएगी। रेदर देन आप कोई लेक्चर्स बार बार सुनोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, अपनी आवाज़ आपको बेटर ज़्यादा रिजल्ट देगी। एंड दैट्स अ गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब आप शुरू से अच्छे स्टूडेंट्स थे? सर एवरेज स्टूडेंट, मतलब अगर लाइक स्कूलिंग का बात करें तो अच्छा था, बट फिर कॉलेज में आके थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा एंजाइटी रहता था। बीच में थोड़ा एंजाइटी इशू था। मैंने आपको लाइव लेक्चर में, पता है सर, आपको मैंने कमेंट भी किया कि समय काफी नींद लगता है, सो राइटिंग बड़ा, फिर यू सेड नो, you have to work hard, drug is not the solution, and I took it very seriously, and प्रवीण त्रिपाठी सर को मैंने टेक्स्ट से एंजाइटी काफी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब लाइक नॉर्मल एवरेज, नॉट लाइक टॉपर वन। ग्रेट। तो सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं तो दे शुड रियलाइज के आपका टॉपर होना जरूरी नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। सो इवन इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट बट यू स्टडी हार्ड देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम। एंड अभिमन्यु ने तो अभी 2 महीने में ही एग्जाम क्रैक किया है। तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया सर बताइए स्टूडेंट्स के एक्चुअली लिए। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि एफएमजी इज मोर अबाउट कि आपने 5 साल मतलब कैसा पढ़ा है। मतलब अगर आपका 5 साल आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइक, मेरा जो नेपाल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है उसका पैटर्न ही काफी ज्यादा टफ है। तो हम लोगों का वो मतलब उतना टफनेस लेवल है कि मतलब हैंडल कर लेते हैं इन अ वे कि एग्जाम है तो ठीक है, एग्जाम है, हम लोगों को तो टफनेस लेवल सेट हो चुका है इतने एग्जाम दे देकर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये था कि यार इतना टफनेस तो है, तो एफएमजी है, मतलब उतना भी टफ होगा तो फिर वो हमारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा टफ नहीं होगा सर, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा ही टफ है। मतलब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज लाइक 90 स्टूडेंट में 10 या 12 लोग ही पास होते हैं। अब आप बताइए, 10-12 लोग ही पास होते हैं, तो उसमें हम लोगों का होना मतलब बिग डील। तो मेरे को लगता था कि चलो ठीक है, पढ़ा हुआ तो है, बट अब रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो लास्ट की 2 मंथ भी डुएबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मतलब लाइक आंसर है ना, मोर देन क्वेश्चंस यू हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर, बिकॉज क्वेश्चन तो आप 1000 बना लेंगे, पर फिर अब नेक्स्ट 101 क्वेश्चन अगर कोई वो अल्टर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ लो कंसेप्ट वाइज, फिर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपका चैप्टर क्लियर है, आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट अगर आपने क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाया है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ नहीं है, देन डिफिकल्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपने क्वेश्चन किए उसी में से आए। जो कि इस टाइम हुआ फर्स्ट पेपर में पीवाई टी था, पीवाई क्यू नहीं था। हम्म। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं थे। तो जिन्होंने सिर्फ पीवाई क्यू कर रहे थे वो बोल रहे थे अरे उसमें से आया ही नहीं, मेरे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। तो मैंने कहा पीवाई टी आया है बट पीवाई क्यू तो नहीं आया है। पीवाई टी तो आया है, डेफिनेटली पीवाई टी आया। और मेरा हमेशा इससे यही रहता है कि पेशेंट के साथ डील करना है ना फ्यूचर में सर। तो लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी हम लोग देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पीएसएम के एक सर थे, वो इंडिया से ही थे, तो यहाँ पर प्रोफेसर, तो वो हमेशा यही बोलता है पेशेंट आपके पास ऐसे नहीं आएगा कि मेरे को कर्सिंग सिंड्रोम है, आप मेरे को ठीक कीजिए, नहीं। आपको ही डायग्नोज करना है, आपको डीडी बनाना है, आपको फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाना है, इन्वेस्टिगेशन सेंड करना है, आपको ही ट्रीटमेंट करना है। तो आपको सब कुछ आना है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को सिर्फ पास आउट करना है तो मैं पीवाई टी या फिर पीवाई क्यू पढ़ के जाऊंगा, नहीं।
तो मेरा यूनिवर्सिटी में यही अप्रोच रहा है कि मेरे को सब कुछ ही पढ़ना है। एंड हमारी यूनिवर्सिटी में लाइक मैंने आज तक कोई ऐप नहीं लिया। नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट यूज एनी ऐप। समवेयर इट इज बेनिफिटेड अस बिकॉज वी आर लाइक की बुक पढ़ लेते हैं और लास्ट में फिर पीवाईक्यू या पीवाईटी कर लेते हैं। तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम सेरिबेलम यूज किया और मेरे लिए तो काफी प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा। क्योंकि वीडियो से लाइव इंटरेक्शन से ना बहुत ज्यादा वो एक फेथ मिलता है जब टीचर्स लोग आपको आपका नेम कॉल कॉल आउट करते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। एक बूस्टअप रहता है और एक शेड्यूल रहता है, वरना कई बार आप लेजी हो जाते हो। एक आप जब लाइव क्लास लेते हो एक शेड्यूल रहता है आपका कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। एंड मैंने लाइव क्लास के में भी मैंने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे लाइक अपनी जो लाइव क्लास है तो 15 जुलाई तक थे ना सब। तो मैंने क्या किया था कि लाइक लास्ट के जैसे पीएसएम बायोकेम लास्ट में रखा गया था सेरिबेलम अकेडमी की तरफ से। तो जब मैंने एनरोल किया था प्रोग्राम को तो मैंने टाइम निकाल के आर ऑफ पीएसएम बायोकेम एंड माइक्रो पहले ही कंप्लीट कर ली जून में। सो डेट क्योंकि 15 जुलाई के बाद तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, तो अगर मैं उसके हिसाब से लाइफ के हिसाब से जाऊंगा तो फिर मेरा थोड़ा लैग हो जाएगा। तो मैंने पहले आर कर लिए। फिर मैंने लाइव क्लास में मेरे को टाइम मिला तब मैंने वो अटेंड किया, मतलब रिकॉर्डेड वाला। तो मैंने पहले ही आर कर ली क्योंकि मेरे पास पूरा जुलाई एकदम रिवीजन क्लियर रहे। तो मैंने थोड़ा इसको भी लाइव क्लासेस को भी थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया क्योंकि मेरे को रिवाइज रिवाइज करना बहुत जरूरी है। Whenever you go to exam hall, you should have some memory. A bulk of memory gives you confidence. Without memory, going like हाँ पढ़ा है, not going to work. You have some memory so that at least उसमें से पूछा है आप करोगे करेक्ट। Like first paper was tough. Tough in the sense grammar was tough. चीज थे मतलब like electron transportation everyone knows question is going to ask every year question is asked, but this time the grammar was so difficult। मतलब मुझे myself I have read the question 3 times, then I came to know कि कॉम्प्लेक्स टू का इनहिबिटर पूछा है। मतलब फर्स्ट टाइम में मेरे को पता ही नहीं चला कि पूछा क्या, मेरे को ग्रामर को डिकोड करने में टाइम लग गया। तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा ग्रामर थोड़ा इस बार टफ था कि ग्रामर डिकोड करने में टफ, मतलब क्वेश्चन को रीड करना पड़ रहा था बार बार कि पूछ क्या रहे ये लोग। हम्म, और सेकंड पेपर जैसे फर्स्ट पेपर अगर टफ था तो सेकंड पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। मैंने तो सबको बोला है सेकंड पेपर वॉज बहुत ही ज्यादा इजी अब तक का मैंने जो देखा है। सबसे ज्यादा इजी मुझे तो सेकंड पेपर लगा। और फर्स्ट पेपर लिटरली ग्रामर उसका टफ था तो नहीं मेरे से डिकोड हो पा रहा था। मेरे को एकदम मेरा मतलब लाइक 4-5 मिनट पहले ही पेपर ही कंप्लीट हुआ। तो मैं भी थोड़ा पैनिक में था कि पेपर कैसा गया है, बट आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है ये 50% ही अभी निकला है फर्स्ट पेपर, 50% स्टिल इन माई हैंड। तो मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम स्कोर सेकंड पेपर से हुआ। इट इज मोर क्लिनिकल सेकंड पेपर एंड इट वाज इजी आल्सो। ग्रेट ग्रेट। इस बार तो वैसे भी जब आपने अटेंड किया तब वी हैड ओनली 2 मंथ्स टू डू द लाइव लेक्चर्स, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का क्रंच था, तो दैट्स वाई द लेक्चर्स वर एक्सटेंडिंग टिल जुलाई। तो बट जो जुलाई के बाद अभी मिशन 200+ चल रहा है, तो दैट इज लॉन्गर पीरियड, अराउंड 4.5 मंथ्स के हमारे लेक्चर्स हैं। तो उसमें रिवीजन वगैरह सब कुछ ही हो जाएगा, तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। And from our college, we three students have enrolled to the program, and they have also tell me that sir को thank you बोला। They have also passed with the 158 and 156 score। दैट्स ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना मेरी तरफ से उन दोनों को भी। और Thank you। उनको मेरा नंबर भी दे देना, बोलना हम कांटेक्ट Oh, करेंगे। चलो अभिमन्यु, ये बताइए अब, पढ़ाई की बातें तो कर ली, आपको सेरेबेलम में बेस्ट टीचर्स कौन कौन से लगे? sir, yes, sir. From this interaction, I want to thank Raina ma'am of Scanning। मैम इज सो गुड। लाइक मतलब मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं ना रूम में बैठ के ही पढ़ रहा हूँ। मतलब वेन एवर आई हैव आस्क्ड हर डाउट आई हैव सेंड ऑलमोस्ट 12 to 13 डाउट्स विद स्क्रीनशॉट। मैम ने मुझे ना आफ्टरनून बाय द इवनिंग मैम ने विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेरे को उसका आंसर भेजा। दैट वाज हार्ट टचिंग। मतलब इतना कंसल्टेंट लोग आप लोग यू आर वेरी बिजी, हर कोई बिजी रहता है बट इतना प्रॉपरली आंसर भेजना और इतना अच्छे से समझा देना इंस्टाग्राम पर, मतलब हार्ट टचिंग था। फिर अमृतसर भी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे डाउट सॉल्व किए। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे डाउट्स डाउट्स रह गए। लाइक मैं उसके बाद पूछ पा रहा था, लाइक पीओजी से रिलेटेड डाउट्स थे मेरे को तो मैं ओपनली पूछ पा रहा था। सर लोग टाइम निकाल के मेरे को पूरा डाउट एक्सप्लेनेशन के साथ भेजते थे। एंड सर आप और प्रवीण सर, आप और प्रवीण सर ही है और जिनके कारण मैंने सेरिबेलम लिया। मतलब मेरे को था कि प्रवीण सर है गोगा सर है तो सेरिबेलम को एनरोल कर लेते हैं, ज्यादा सोचने का नहीं है। अब एफएमजी मिशन भी और दोनों सर है, अपने बैच सर इसमें ही है तो ये ले लेता है। ये लिया फिर इस पर ही मैं लगा राखी। बस ये जो पढ़ा रहे इतना करना है, बाकी तो आपने जो 5 ईयर आपने जो किया है क्लिनिकल एक्सपोजर जो है उससे हो जाएगा। तो उतना तो था तो किया मैंने सर। चलो दैट्स ग्रेट। एंड अच्छा मुझे एक चीज एग्जाम आप, में
एग्जाम में जैनब बोरा मैम का जो था कि लाइक कुछ क्वेश्चंस मतलब नहीं सॉल्व हो पा रहे थे ना, तो मैम ने बोला था कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आई एंड रिमेंबर हम्म, दैट, है ना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम एंड यू हैव अदर फर्दर क्वेश्चन अहेड। तो वो मेरे लिए काफी काम आया, क्योंकि मैं भी पैनिक कर गया था। लाइक 10-20 क्वेश्चंस में मेरे को भी लग रहा था कि मतलब लाइक दो एक्सक्लूड हो रहे थे, पर दो ऑप्शंस रह रहे थे जिनमें मतलब मेरे को लगाना पड़ रहा था गैस वर्क। तो उस टाइम मेरे को भी थोड़ा पैनिक था, बट डीप ब्रेथ, होल्ड ऑन एंड मूव ऑन। ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपने 2 महीने जैसे इंटर्नशिप बीच में छोड़ दी अपनी, तो 2 महीने और एक्सटेंड करके आपका हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, मेरा अब इंटर्नशिप 3 मंथ 15 डेज ऑफिशियली लेफ्ट है, बट 2 मंथ मेरा रिपीटेशन है। इन ओके। ऑफ गैन ही मेरा छूटा था, तो उसका रिपीटेशन मेरा 2 मंथ लगेगा बाद तो में। उससे मतलब वैसे कोई अफेक्ट नहीं होगा? No, no effect. Even in 2 months, if I will require them, then they can manage anyhow for it up to the 1 month. तो 4 मंथ में इंटर्नशिप भी हो जाएगा, तो बेस्ट है ना। सो एमबीबीएस भी हो गया, एफएमजी भी हो गया, इंटर्नशिप भी ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ग्रेट ग्रेट। मेजर एक ऑब्स्टेकल पास हो गया एफएमजी का। यस, तो नाउ यू कैन लर्न इन इंटर्नशिप ऑल्सो, और उसके बाद पीजी की तैयारी भी कर सकते हो, है ना? यस तो सर, आगे डेफिनेटली। क्या सोचा है आपने, क्या तो करना अभी है? तो मैंने सोचा है कि लाइक अभी इंटर्नशिप में जैसे लाइक प्रैक्टिकली सीखने को काफी मिलता है, तो मैंने सोचा है कि इंटर्नशिप में जो जो सीखने मिल रहा है वही उससे रिलेटेड थ्योरी करने का सोचा है। फिर मैंने सोचा है कि अभी उससे रिलेटेड थ्योरी करूँ। एंड अभी मैं सेरेबल पापा से यही बात कर रहा था कि मेरे को वापस ऐप को एनरोल करना है, तो फादर बोले कि ठीक है। मेरे पापा थोड़ा बोलते कि थोड़ा कम पढ़ो, फर्स्ट टाइम है कि पहले बोलते थोड़ा कम पढ़ो। बोलते कि नहीं अभी तो पास हो, थोड़ा एक हफ्ता आराम कर। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को एनरोल करना है। जैन में भी एग्जाम हो सकता है, तो देने मिल जाएगा अगर इंटर्नशिप हो गया तो अभी सेरिबेलम को एनरोल करना है सर। बट मेरा मेन फोकस अभी रहेगा कि अभी जो 4 मंथ मेरा इंटर्नशिप है उसको मैं अच्छे से करूँ, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर नेपाल में काफी ज्यादा है। तो काफी सीखने को मतलब पॉजिटिव हमको करने मिलता है, एसआईटी स्टेपिंग वगैरह सब कुछ करने देता है। तो इट्स वेरी मतलब लकी इनफ कि करने मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स? तो आई वांट टू से दैट कि विल पावर होना पड़ा। यू हैव टू कीप दैट विल, वेयर बिकॉज देयर इज सेइंग ना, वेयर देयर इज द विल देयर इज अ वे। यू हैव टू कीप द विल। देयर विल बी डेज इन दिस 2 मंथ, इट इज नॉट दैट आई हैव स्टडीड एंटायर डे और ऐसा कुछ नहीं। इन दिस 2 मंथ ऑल्सो देयर वर डेज वेयर आई वाज नॉट ओके विथ हेल्थ, some health issues were there, and sometimes you don't feel like studying, gets too hard. So it's okay, but like you have to set a target कि आज मुझे 3 वीडियो करना है। बट अगर 3 वीडियो नहीं हो रहा है किसी कारण, तो यू कैन गो टू 1.5 वीडियो, बट एटलीस्ट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू कीप दैट विल, दैट आई विल डू। यू हैव टू कीप द विल, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अभिमन्यु। तो स्टूडेंट्स, द मेजर मैसेज डॉक्टर अभिमन्यु वांट टू गिव कि एक तो आपको विल होना चाहिए कि मुझे पास करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही इज टेलिंग इज कंसिस्टेंसी, कि आपको लगे रहना है। ठीक है, अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे, जितना भी पढ़ पा रहे हो पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो। सो यस दैट सर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थैंक यू डॉक्टर अभिमन्यु फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर दैट यू हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्शन सर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय।